and deciduate, that means it is derived from the endometrium of the uterus of the mother. So there actually decidua is a term, right? In a normal you have read about the linings of the or the layers of the uterus, that is the endometrium, myometrium and the can anybody help me? Perimetrium. Yeah, sorry. Perimetrium. Sorry, the Perimetrium. Perimetrium. right, and it is covered by the serosa. So actually there occurs some changes in the endometrium during the pregnancy, and this changed endometrium is known as decidua. There are many changes, right? That's why this placenta is also deciduate, considered deciduate in this. The placenta is attached to the uterine wall and establishes connection between the mother and the fetus through the umbilical cord. That is already I have explained. The basic thing about the placenta is only the eutherian, that is the mammals who are possessing placenta are eutherian, and it is hemochorial, that is it is in direct contact with the maternal blood. Discoid means it is disc-like shaped, and deciduate, that is derived from the decidua, right? So this is the basic, that it is attached to the uterine wall and it establishes contact between the mother and fetus through umbilical cord. I will show you the picture. Now see, this is the uterus, this is the fetus, and sorry, this is actually the placenta, and it is an organ which connects the fetus to the mother, yani mother's uterus with the help of an umbilical cord, right? So how it develops? Now the first learning objective of today's class is how it develops. That is, what is the development of the placenta? You can be asked. The two basic points that you should remember it. There are two sources of the sources from which placenta develops. That is, one is the mother side. That is, one is the from the mother component. That is the maternal component, and other is from the fetal component. So what fetal component that gives rise to placenta is the chorion frontosum, and the which component of the mother which gives rise to the placenta is the decidua basalis. Right now, with the subsequent slides, I will be explaining you what is chorion frontosum and what is decidua basalis. So now look at this picture. A very short basic for this. Now see, this is the uterus. You can see very well. See, this is the uterus, right? Am I clear? Am I audible? Can anyone? Yes, Jimmy. Thank you. So this is the uterus. Yes. Cursor नहीं दिख रहा. Oh, this was. कोई बात नहीं. Actually, this was the problem yesterday also. I think there is some problem. I don't know how to sort it out. But मैम actually cursor full screen mode पे नहीं दिखता कभी कभार. So what to do? Ma'am, you can exit the full screen mode and show the slides on without the full screen mode. Actually, I don't know. This screen is visible only. The half of the screen is visible to me. Means the whole of the laptop is not showing the single slide, but a small portion of the laptop is showing the slide. So, can anybody suggest anything how to do this? And press the escape button. Where is that? Top left button on the keyboard. No, it's not there. Oh. It's not there. Okay. Some other thing I can do is. I'm actually slideshow पे नहीं दिखती. मैं full screen mode मतलब slideshow. अच्छा. नहीं दिखता. अगर slideshow exit कर दोगे तो फिर उस पे दिखेगा. Okay. Just a second.
is now visible? Something visible? No? No. Mm, Ma'am, it's okay. You can continue without the cursor. No? Yes, nahi, ma'am, it is it's very okay. important you to understand, I think, with the help of this. So, मैं एक बार लीव करती हूँ, then फिर rejoin करूँ? That won't help. Actually, it only helps if you can exit the full screen mode. On PPT visible. Because it is अगर मैं stop presenting करूँगी तभी वो screen हटेगी, और तो कुछ मोड दिख नहीं रहा मुझे, कोई और ऑप्शन जो मेरे को हटाए यहाँ से, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। चलो ठीक है, नाउ लिसन, ये जो आपको यूट्रस समझ में आ रहा है बच्चों? आर यू एबल टू सी द यूट्रस इन दिस स्लाइड? ओवॉइड सा शेप है, राइट? और यहाँ पे आप लेबलिंग भी देख सकते हो आराम से। उसके बाद जो ये ऑरेंज, आर यू एबल टू सी दिस ऑरेंज लाइनिंग इन द दिस इज द डेसिडुआ, राइट? Yes. Yes, sir. यस। ओके, कैन यू सी द फीटस? छोटा सा बीच में गोल इरेगुलर सा शेप का। Yes, ma'am. ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या होती है? देयर इज अ एमनियोटिक कैविटी। सी द लेबलिंग। यस, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब नाउ सी, जो ऑरेंज लाइनिंग जो यूट्रस को कवर अंदर से कवर कर रही है, देन आप उसको फीटस की तरफ लेकर जाओगे तो वहां देखोगे ऑरेंज लाइन थोड़ी थिक हो रही है ना? Yes. हाँ, तो जो ये ऑरेंज लाइनिंग जो थिकन्ड है, जो अटैचमेंट दे रही है फीटस को, दैट इज नोन एज डेसिडुआ बेसालिस। तो द पार्ट ऑफ डेसिडुआ इज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इन द प्रेग्नेंट यूट्रस, जिसमें चेंजेस होते हैं। तो जो द पार्ट ऑफ डेसिडुआ विच इज कनेक्टेड टू द फीटस इज द बेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज द डेसिडुआ बेसालिस, right? And the part of the endometrium which is lining the rest of the endometrial cavity is decidua parietalis. Understand? And the part of decidua which covers the fetus, not at the base, which covers the fetus is the decidua capsularis. Are you able to get these three: decidua basalis, capsularis and parietalis? Are you able to see? Yes. Okay, so decidua according to the area of distribution, decidua is divided into decidua basalis, that is which is directly connected to the fetus. At the fetus जैसे ही implant होता है, that is the interstitial implantation. पिछले lectures में आपको interstitial implantation बताया गया कि नहीं बताया गया, ये बताओ। जो anatomy and all दो था, उसमें आपको interstitial implantation बताया गया कि नहीं बताया गया? इम्प्लांटेशन डिस्कस हुआ था। हाँ, ओके, इम्प्लांटेशन डिस्कस हुआ ना। तो यू मस्ट बी नोइंग कि ह्यूमंस में टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इज द इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, राइट? तो व्हाट इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन? इसमें कि पेनिट्रेट कर जाता है एंडोमेट्रियम में, राइट? दिस इज इंटरस्टिशियल। तो एंडोमेट्रियम की भी ना डिफरेंट लेयर्स होती है, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम और बेसालिस वाली। तो ये जो पेनिट्रेट करती है थ्रू कॉम्पैक्ट लेयर, तो मतलब ये ऊपर नहीं अटैच होती है एंडोमेट्रियम के, अंदर घुसती है। तो इस इम्प्लांटेशन को व्हाट वी कॉल इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, राइट? अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो जब वो एक एरिया में अंदर घुसती है तो उस एरिया में जो उसका बेस होता है ना, दैट इज, तो उसको हम कहते हैं कि वो वहां से फीटस अटैच होता है, राइट? और वो जो एरिया होता है एंडोमेट्रियम का, उसको बोलते हैं, वी कॉल इट डेसिडुआ बेसालिस। ठीक है, ओके, Yes. Yes. ठीक है।
So now we have understood what is the maternal component, that is the decidua bassalis. Now we will be discussing the chorion frondosum. What is chorion frondosum? Now see, ये आप projections नजर आ रही हैं आपको? देखो chorion frondosum को देखो जरा ध्यान से, जहां लिखा हुआ है डायग्राम में. Are you able to see chorion frondosum? Yes, ma'am. हाँ, तो ये ना फीटल पार्ट है. इसमें जो प्रोजेक्शंस नजर आ रही है ना, दिस इज एक्चुअली जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक पोर्शन है. तो जब आपने स्टेजेस ऑफ फीटस पढ़ा होगा तो उसमें आपने यू मस्ट हैव रेड द डिफरेंट स्टेजेस. आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 cell stage, then 4 cell stage, morula stage, right? 14 to 16 morula stage, then blastocyst stage. पढ़ा पिछले क्लासेस में? बताओ जल्दी से. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो इतना याद है. अभी थोड़ा थोड़ा भी जो भी नहीं अच्छे से याद होगा तो इतना ध्यान होगा कि जो ये जाइगोट इट डिवाइड्स इनटू 2 cell, 4 cell, देन 16. तो जो उसके बाद वाली स्टेज होती है, मोरुला स्टेज के बाद होती है, देन इट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. तो व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि आउटर 2 cells में डिवीजन हो जाता है जाइगोट का. दैट इज द इनर सेल मास एंड द ट्रोफोब्लास्ट, राइट? इनर सेल मास गिव्स राइज टू फीटस एंड जो आउटर होती है दैट गिव राइज टू अदर थिंग्स, राइट? जो प्लेसेंटा एंड ऑल. तो ये जो आउटर इज द ट्रोफोब्लास्ट दैट गिव राइज टू द placenta. Trophoblast differentiate into syncytial type cytotrophoblast and the cytotrophoblast. This is the broad thing. तो इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? जल्दी आगे सबको आया? ये जो बच्चा बोल रहा है उसके अलावा कोई बच्चा बोले? Yes, ma'am. ठीक है, right? So the 2 sources are the fetal source, that is the chorion frondosum, and the maternal component, that is the decidua bassalis. Now I am moving on to the next slide. तो ये थोड़ा theoretical है. I will be explaining with the diagram also. So now see, when the interstitial implantation is completed on 11th day, I have already told you what is an interstitial implantation, right? The blastocyst is surrounded on all sides by the lacunar spaces around the cord of syncytial cell called trabeculae. अभी मैं I will be explaining you like एक बॉल है, right? उस बॉल के अंदर कुछ भरा हुआ है, दैट इज द फीटस, छोटा सा. उसके मतलब आप इमेजिन करो ब्लास्टोसिस्ट को, जो बाहर से आउटलाइनिंग है दैट इज द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, और इनर एक सेल मास है. तो उसके अब उस ब्लास्टोसिस्ट के सराउंडिंग्स में देयर आर सिंसीशियल सेल्स. सिंसीशियल मीन मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ठीक है? और उन सेल्स के बीच में देयर आर स्पेसेस, राइट? तो उन स्पेसेस को क्या बोला गया? लैकुनर स्पेसेस. तो जो बीच में सेल, बीच में स्पेसेस का जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज द ट्रैबिकुले. ट्रैबिकुले क्या होता है? जाल समझ लो, राइट? जाल देखा है आपने कभी? जाल जो समझ लो, Yes. बीच में जाल के बीच में गैप्स हैं, दीज आर द लैकुने, और उसके सराउंडिंग्स में जो तारे बंधी हुई हैं दैट आर द सिंसीशियल सेल्स. तो ब्लास्टोसिस्ट इज सराउंडेड बाय दिस ट्रैबिकुलर नेटवर्क, दैट इज द लैकुनर स्पेसेस एंड द सिंसीशियल सेल्स, ठीक है? फ्रॉम द ट्रैबिकुले, ये जो जाल है, फ्रॉम द ट्रैबिकुले डेवलप्स द stem villi on 13th day which connect the chorionic plate with the basal plate, राइट? तो मैं आपको अभी बताऊंगी कोरियोनिक प्लेट क्या है. एक्चुअली मोटा मोटा समझ लो, कोरियोनिक प्लेट इज रिलेटेड टू फीटस एंड बेसल प्लेट इज रिलेटेड टू मदर, राइट? अंडरस्टैंड? आई विल बी शोइंग यू डायग्राम ऑल्सो. वेट अ मिनट. Now see, look at this diagram. मोटा मोटा समझने के लिए, जो this is the chorionic plate. Now this is the placenta. I'm showing just a gross. This is the placenta. This is the cord.
कॉर्ड ऊपर की तरफ जा रही है, कर्सर नहीं दिख रहा होगा आपको, कॉर्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो फीटस ऊपर है, यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, फीटस ऊपर है मतलब फीटस के ऊपर है और नीचे प्लेसेंटा है। तो जो फीटस वाला एरिया है जहां से अम्बिलिकल, सी द अम्बिलिकल कॉर्ड लेबलिंग दिख रही है आपको? आर यू एबल टू सी द अम्बिलिकल कॉर्ड लेबलिंग? Yes, In Yes, which, ma'am. in which umbilical arteries and umbilical veins are there? yes, Right? yes. हाँ, now see, this is called, this is connecting to the placenta, right? And यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Chorionic plate. इसको आराम से जल्दी से देखो, डायग्राम में देखो कहाँ लिखा है chorionic plates. ठीक है? ओके, दिख Yes, गया? ma'am. हाँ, तो ये Yes. जो दो लाइनें बनी है, that is the red line and the green line, इसके बीच में क्या है? This is the chorionic plate. ठीक है? तो ये किस तरफ का है? That is the fetal side. राइट और ये हमारा जो नीचे बेसल प्लेट, लाओ लुक एट दिस, ये मेटर्नल सरफेस है, ठीक है, मेटर्नल साइड से। नाउ नीचे से डायग्राम के नीचे सारी लेबलिंग देखिए, दिस द मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम का कुछ नहीं करना हमें, बस जस्ट सी द मायोमेट्रियम, देन उसके ऊपर मायोमेट्रियम के ऊपर, नाउ सी अबव दिस, दिस इज द डेसिडुआ, सो दिस इज द पार्ट ऑफ डेसिडुआ, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स नजर आ रहे होंगे आपको, है ना, है ना, Yes, ma'am. जो लाइट ऑरेंज है दैट इज द डेसिडुआ। फिर उसके बाद नाउ यू कैन सी, ऊपर से जाइए, कोरियोनिक प्लेट से जाइए, कोरियोनिक प्लेट में देखो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, सिंसिशियो ट्रोफोप्लास्ट, साइटो, तो इनके ना इन्वेजिनेशंस होते हैं, ये सारे जो ब्रांचेस बनी है, दीज आर एक्चुअली द विलाय, दीज आर द टर्शरी विलाय। ये ब्रांचेस देख रहे हो जिसमें एक रेड कलर की और ब्लू कलर की वेसल्स नजर आ रहे हैं अलग अलग, है ना, और ग्रीन कलर की लाइनिंग, या yes, ma'am. कलर समझ में आ रहे हैं कि डिफरेंट कलर आ रहे हैं आपके फोन्स में? कलर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Same are. Yes, ma'am. Same are. सेम आ रहे हैं। तो दीज आर द विलाइज, राइट, दीज आर द एक्चुअली द टर्शरी विलाइज। तो कैसे होता है, जो ब्लड, जो भी वो मतलब जो ब्लड, यहाँ पे आप नीचे आ जाइए डेसिडुआ में, डेसिडुआ को देखिए, डेसिडुआ में ना मेटर्नल वेसल्स पड़े हुए हैं रेड एंड ब्लू कलर के, डेसिडुआ में, सी द डेसिडुआ स्पेस, ठीक है, वहां से ब्लड पास, दिस इज द बेसल प्लेट, ठीक है, यहाँ से ब्लड पास होता है और वो स्पेसेस में जाता है। नाउ ये जो हम लैकुनेस की बात कर रहे हैं ना, दीज आर द स्पेसेस, सी द एरोज ऑफ द रेड कलर ब्लड वेसल्स, जो मदर से जा रहा है फीटस की तरफ, ऊपर की तरफ, सी द रेड एरोज दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो रेड एरोज दिख रहे हैं, वो जो स्पेसेस नजर आ रही है ना, जो लाइट ऑरेंज स्पेसेस है, दीज आर एक्चुअली द लैकुनेस, मतलब वहां पे ब्लड चला जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चे की तरफ कैसे पहुंचता है, ये जो ग्रीन ग्रीन लाइनिंग नजर आ रही है ना, इसके थ्रू, तो हमने पहले फर्स्ट सेकंड स्लाइड में क्या डिस्कस किया था, हीमोकोरियल होता है प्लेसेंटा, तो हीमोकोरियल क्या है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मदर्स ब्लड, राइट। तो यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ से जिसको, हाँ सी, लैक्यूना ग्रे वाला एरिया है ना? मेरे पास ग्रे नहीं है, मेरे पास बहुत जो लाइट ऑरेंज है ना, जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, ब्रांचेस जो जिस स्पेस में है, मतलब जो बड़े बड़े से स्पेस पड़े हुए हैं, जो कॉटिलिडन से बने हुए हैं ना, वो, सॉरी, हम पिंक कलर का एक एरिया है। हाँ, जो पिंकिश सा एरिया, राइट, ठीक है। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको मैंने क्लियर कर दिया, अब हम पीछे जाते हैं, पीछे स्लाइड्स में, ठीक है। Now see, so I have discussed when the interstitial implantation is complete by 11th day, the blastocyst is surrounded on all sides by the lacunar spaces around the cords of syncytial cells called trabeculae. ठीक है, from the trabeculae develops the stem villi on 13th day, which connects the chorionic plate with the basal plate. तो आपने देखा ना, अभी एक कोरियोनिक प्लेट देखी थी फीटल की तरफ, बेसल प्लेट देखी थी मदर की तरफ, तो ये जो ट्रैबिकुलेस के बीच में स्टेम विलाइज जा रही है, इनके बीच में कनेक्शन हो जाता है, ये कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट के बीच में कनेक्शन डेवलप करते हैं एक्सचेंज का। अब समझ में आ गया आप लोगों को? आर यू एबल टू गेट इट? Yes. ओके, तो
ट्रेबिकुलेस ये जो जाल है इससे स्टेम विलाय निकलते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट के बीच में कनेक्शन डेवलप करते हैं, ठीक है। इतना मैंने डायग्राम दिखा दिया आपको। तो अब नाउ सी, ये स्टेम विलाय 3 तरह की होती हैं, दे डेवलप सक्सेसिवली, द प्राइमरी, द सेकेंडरी, द टर्शियरी विलाय, ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम द स्टेम विलाय। अब ये आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर दीज, नाउ सी दिस डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम ए देखिए, नाउ सी द ए डायग्राम, यू कैन सी प्राइमरी स्टेम विलाय 11 to 13 दे डेवलप करती है। तो अब नाउ सी डायग्राम देखिए, आपको कलर समझ में आ रहे हैं बच्चों। देखो नीचे, सबसे नीचे क्या है, मदर्स ब्लड है, जो हमने अभी डायग्राम देखा था प्लेसेंटा का, नीचे ही था ना, मदर साइड नीचे था, बच्चे का साइड ऊपर था। नाउ सी मदर ब्लड के ये वेसल्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। और ये लैकुनेस हैं, जो रेड कलर का नजर आ रहा है ना आपको, देखो ट्रोफोब्लास्टिक लैकुना, डायग्राम देखो, ट्रोफोब्लास्टिक लैकुना, ठीक है, लैकुना यानी स्पेसेस, ठीक है। और ये जो ग्रीन स्लाइड नहीं दिख रही, चेंज नहीं हो रही, स्लाइड नहीं दिख 19 पे रही है अभी, क्या, सॉरी 19 स्लाइड पे है अभी मैम, दिख 19 रही है, दिख रही है, आप 7th दिख रही है स्लाइड में 7th slide दिख रही है मैम, yes, दिख रही है ना। इसमें 3 डब्बे बने, आर यू एबल टू गेट इट? जिन 3 डब्बों के नीचे Yes, ए बी लिखा है, प्राइमरी स्टेम विलाय, सेकेंडरी स्टेम विलाय एंड द टर्शियरी स्टेम विलाय, ठीक है। नाउ सी, यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना। तो प्राइमरी स्टेम विलाय देखो, ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको वो जाल के लेकुने बताए थे ना, दीज आर रेड आर द ट्रोफोप्लास्टिक लेकुने। फर्स्ट डायग्राम को नोटिस करो पहले, ठीक है। और जो ग्रीन है, ग्रीन इज द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो इनिशियली मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर सेल्स होते हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट दे डेवलप्ड इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें ना आउटर सरफेस नजर आ रही, इनर सेल में उसका बच्चा ऊपर है, वो तो बच्चा डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, राइट। जो आउटर है ये हमने इसमें दिखाई हुई है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग होती है, जो इनर सेल मास की कवरिंग होती है ना। ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम मेरे पास अभी नहीं है, 1 मिनट देखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर ध्यान हो, मैं फिर से याद दिला रही हूँ कि एक बॉल है, खाली बॉल है, ठीक है, खाली बॉल को समझ लो, उसके अंदर एक और छोटी बॉल है, द छोटी बॉल इज द इनर सेल मास एंड जो खाली ऊपर वाली बॉल है उसमें जो सेल्स हैं उसकी आउटर कवरिंग में, दीज आर द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। तो हम ये आउटर लेयर की बात कर रहे हैं। दिस आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट जो है, इट डिवाइड्स इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटो क्या है, इनर है, बच्चा की तरफ क्या है, इनर है, बॉल का अंदर है, ठीक है। दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट जिसमें सेल्स खूब सारे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, डायग्राम में दिख रहा है, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो जो बाहर और आउटर टू फीटस इज, दिस इज सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये समझ में आ गया, यस और नो? Yes, ma'am. तो ट्रोफोब्लास्ट के 2 डिवीजन समझ में आ गए, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। और ये समझ में आना चाहिए कि इनर कौन सा है और आउटर कौन सा है, ठीक है। तो इमेजिन बेबी इज अबव, बेबी ऊपर है, इस डब्बे के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग नजर आ रही है, दिस इज द लाइनिंग ऑफ द, जो बॉल है, बॉल की आउटर लाइनिंग है। तो बॉल की आउटर लाइनिंग डिवाइड्स इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियो। तो इसके ना इवेजिनेशंस निकलते हैं, ये जो आप इतने से कर्व से बने हुए नीचे जा रहा है ग्रीन पोर्शन, सी जो ग्रीन पोर्शन ऊपर से निकल के इवेजिनेशंस बन रहे हैं ना, देख रहे हो आप? फर्स्ट डायग्राम में ग्रीन का इवेजिनेशन। तो धीरे धीरे करके वो मदर की सरफेस गया हुआ है की तरफ, ठीक है, धीरे धीरे करके गया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे उस तरफ गया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ना, जब हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, ये जो आपने रेक्टेंगल डब्बा देखा है, इसको ट्रांसवर्स करो, ट्रांसफर स्लाइड करो, तो जो आपको नजर आएगा वो क्या नजर आएगा, अंदर की तरफ यू विल सी द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, आउटर की तरफ आपको अंदर की तरफ सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और आउटर की तरफ आपको लेकुनेज नजर आएंगे। तो ये क्या होता है, प्राइमरी स्टेम विलाय, ठीक है। अभी इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, राइट। फिर सेकेंडरी स्टेम विलाय बनती है 16th डे में। उसमें क्या होता है, नाउ सी ऊपर से सेकंड बॉक्स देखिए,
सेकेंड बॉक्स में सबसे ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो जो बच्चे के अलावा जो मीजोडर्म होती है, दैट इज द, जो बच्चे को नहीं लाइन करी, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो वो आपने सब पढ़ा होगा, मीजोडर्मल डिवीजन, क्या 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 सेल्स बनते हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो अभी जस्ट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बस रिमेंबर जो अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ वो भी अंदर इमेजिनेट कर रही है। तो जब मीजोडर्मल इन्वेजन हो जाता है उस विलाय में, देन वी कॉल इट टू बी अ सेकेंडरी स्टेम विलाय। पहले में क्या है, साइटो एंड सिंसिशियो दोनों है प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी में क्या है, देयर इज अ इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, नाउ यू कैन सी द ब्लड, इस बॉक्स के सेकेंड बॉक्स के सबसे नीचे देखिए ब्लड वेसल्स है, उसके ऊपर देखिए सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, फिर उसके ऊपर देखिए इन्वेजिनेशन वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट है, उसके अंदर क्या है, दैट इज द मेसोडर्म। सो व्हेन हम इस बॉक्स का, जब हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, नाउ डू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉक्स, सॉरी, तो हमें क्या नजर आएगा, अंदर की तरफ देयर विल बी मेसोडर्म, आउटर टू दैट इज द cytotrophoblast, and outer to cytotrophoblast is the syncytiotrophoblastic, and outer is the lacunar. तो ये हमारी क्या है, सेकेंडरी विलाय होगी, इट फॉर्म्स इन 16th डे। एंड टर्शरी विलाय क्या है, जब अंदर बच्चा देयर, नाउ सी थर्ड बॉक्स देखिए ध्यान से, तो उसमें सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर फीटल साइड है ना, फीटल साइड आर्टरी और वेन्स बन गई हैं। यू कैन सी द इन डायग्राम, वो जो वेसल्स इस विलाय लाइक स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट कर जाती है और फिर एक्सचेंज प्रोसेस शुरू होता है, तो दिस इज नोन एज टर्शरी विलाय। तो व्हेन वी डू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस थर्ड बॉक्स, व्हाट विल वी फाइंड, वी विल फाइंड इन innermost is the blood vessels, then is the cytotrophoblast, then the syncytiotrophoblastic, and outer to that is the lacunae. Is this clear to everyone or not? If anyone has not understood, please tell me. Yes, I'm waiting. Please tell me, then I will further proceed. Ma'am, it's clear. It is clear. So now you are able to understand what is primary stem villi, what is secondary stem villi, and what is the tertiary stem villi. Now, simultaneously, the lacunar spaces become confluent with one another, and by third and fourth week form a multilocular receptacle lined by the syncytium and filled with maternal blood. Now I will explain this also to you. So going back, तो ये जो आपने जाल पर जो lacunar spaces थी ना, तो अब वो अलग अलग जगह हैं, लेकिन अब वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, थर्ड फोर्थ वीक से। और एक मल्टीलॉक्युलर मतलब कि हर एक का काफी सारे लैकुने हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड दे फॉर्म अ मल्टीलॉक्युलर रिसेप्टिकल लाइन बाय, अब वो लाइनिंग इज द सेम। अच्छा, कोई पूछेगा लैकुनर की लाइनिंग क्या है, तो वही है सिंसिशियम। नाउ सी दिस डायग्राम अगेन, अगर ये जो रेड पोर्शन है उसकी लाइनिंग बोलोगे तो लाइनिंग क्या होगी, पहला कॉन्टेक्ट किसके जा रहा है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। नाउ सी द डायग्राम, जो रेड का फर्स्ट कांटेक्ट किससे है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से, दैट इज द सिंसिशियम से, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से इसका कांटेक्ट है, ठीक है, फिल्ड विद मैटरनल ब्लड, ठीक है, समझ में आ गया। दिस स्पेस बिकम द फ्यूचर इंटरवेलस स्पेसेस। फ्यूचर इंटरवेलस जो लैकुने छोटे छोटे बने हैं, दे विल फॉर्म एंड कंबाइन मल्टीलॉक्युलर रिसेप्टेकल, दे विल फॉर्म एंड फ्यूचर मतलब बाद में जब पूरा प्लेसेंटा बन जाएगा तो क्या बनेगा उसमें, that is I will show you the diagram, intervillous space. ठीक है, इनके बीच में जो ये लाइट पिंक है ना, that is the intervillous space बन जाएगी। इसको भी देख लो डायग्राम, ये रही। Now see, this is very clear. In this diagram you can see very clearly. Are you able to see this diagram? Yes, ma'am. Now Yes, see, ma'am. from above, I am not able to show you a cursor, so that's why I am telling you from above. See from above, this is the fetus. ठीक है, there is a cross section of fetus is attached to umbilical cord with the placenta, pinkish, and there's a box over the placenta now showing the enlarged view of the placenta. Now see this, you will see the chorionic plate, you will see these are the
टर्शरी विलाइज, यू कैन सी द टर्शरी विलाइज और नॉट, कि ये ब्लड वेसल्स मदर की साइड से ब्लड वेसल्स उसके अंदर जा रही हैं टर्शरी विलाइज के अंदर, और उसकी कवरिंग अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना व्हाट इज टर्शरी विलाई. यू कैन सी द ब्लड वेसल्स. उसके बाद होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिटोट्रोफोब्लास्ट. ये जो लैकुने हैं दे आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ लार्ज रिसेप्टेकल. और लेटर ये, आर यू एबल टू सी द लेबलिंग ऑफ इंटरविलर स्पेस? Yes, ma'am. See the label intervillous space. So this is actually the intervillous, means two villi के बीच में जो space बच रही है, that is the intervillous space. ठीक है. Now the term intervillous space is also clear to you, I think. ठीक है. Now moving to this slide again. As the growth of the embryo proceeds, decidua capsularis becomes thinner, beginning at the 6th week, and both the villi and the lacular spaces in the abembryonic area gets obliterated. So इसको explain कैसे करेंगे? Now see this diagram. In this diagram, are you able to see the three things? Decidua bassalis, chorion frondosum, this is Decidua capsularis and Decidua parietalis. दिख रहा है ना? Decidua parietalis मैंने क्या बताया था, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो बच्चे से कनेक्टेड नहीं है लेकिन आउटसाइड है, दैट इज द Decidua parietalis. और जो बच्चे के इनर सेल मास को कवर कर रही है, दैट इज द Decidua capsularis. और जो बच्चे के बेस को उसके साथ यूट्रस के साथ अटैच कर रही है, दैट इज द Decidua bassalis, दैट इज द बेसल प्लेट. तो is these three terms are clear or not? Should I explain you again or not? फिर मैं आगे बढ़ूं. ये three terms explained है कि नहीं है, clear है कि नहीं है? Please tell me. Yes, ma'am, it's clear. It is clear. So कहीं भी आपको कोई डाउट लगे, you can ask me. So क्या होता है? अब now see the diagram, जहाँ पे कैप्सुलरिस बना है और जो पेरिटालिस, दोनों को देखो, कैप्सुलरिस एंड पेरिटालिस, उन दोनों को देख लिया आपने डायग्राम में कहाँ कहाँ है. नाउ अब बच्चे को देखो, जब ये बच्चा इनलार्ज होता है, एमनियोटिक कैविटी भी इंक्रीज होती है, तो धीरे धीरे करके ना ये जो येलोइश सी लाइन है ना, ये ऑब्लिटरेट हो जाती है. डेसिडुआ कैप्सुलरिस और पेरिटालिस के बीच में ऑब्लिटरेट हो जाती है और ये बिल्कुल उसमें चिपक जाती है डेसिडुआ पेरिटालिस में. ठीक है. तो जो आपको सिंगल क्या नजर आएगा कि भाई यूट्राइन कैविटी है और उसमें बेबी है और वहां पे उसके आसपास लाई कर है. ठीक है. तो ये दोनों कंबाइन हो जाती है. ठीक है. ये इसमें बताया हुआ है. एज द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो प्रोसीड्स, Decidua capsularis become thinner, beginning at the 6th week, and both the villi and the lacunar spaces in the embryonic area gets obliterated. तो बेसिकली क्या होता है, ये विलाइज तो सब चारों तरफ होते हैं, लेकिन ये जो कैप्सुलरिस वाली एरिया में, ये एब एम्ब्रियोनिक मीन्स जहां पे एम्ब्रियो नहीं है, वहां पे ऑब्लिटरेट हो जाती है. दिस इज कंपनसेटेड बाय द एक्सूबरेंट ग्रोथ एंड द प्रोलिफरेशन. मतलब वहां पे विलाइज की ग्रोथ कम होके द ग्रोथ इज मोर प्रोमिनेंट इन द Decidua bassalis area, and enormous and exuberant division and the subdivision of the chorionic villi in the embryonic pole, that is the chorion frondosum. So see, this is chorion, मतलब जो Decidua सराउंडिंग है, सब में बनते हैं. कोरियोनिक विलाय पूरे एरिया में, बच्चे के पूरे आसपास बनते हैं, लेकिन जहां से जो एम्ब्रियोनिक पोल होता है, एम्ब्रियोनिक पोल मींस जहां से यूट्रस, जहां से बेबी इज कनेक्टेड, तो वहां पे देयर इज एक्सूबरेंट ग्रोथ ऑफ दीज विलाय. विलाय के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया ना, टर्शरी विलाय, प्राइमरी विलाय. तो वहां पे नाउ सी दिस डायग्राम, द जो एम्ब्रियोनिक पोल कौन सा है और एब एम्ब्रियोनिक पोल कौन सा है. तो एम्ब्रियोनिक पोल जहां से बेबी कनेक्टेड है, यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ विलाइज जहां पे ज्यादा है, दिस इज द एम्ब्रियोनिक पोल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जहां पे बेबी इज अटैच्ड, दैट इज द एम्ब्रियोनिक पोल. वहां पे देयर इज अ एक्सूबरेंट ग्रोथ ऑफ द Decidua bassalis, यानी वहां पे विलाइज की ज्यादा ग्रोथ है. तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? कोरियन फ्रंटोसम. तो हमने ये टर्म और कहाँ पढ़ा था, कोरियन फ्रंटोसम, जहां पे हमने 2 सोर्सेस पढ़े थे प्लेसेंटा के, द मैटरनल सोर्स एंड द फीटल सोर्स. तो फीटल सोर्स का जो नाम है, दैट इज द कोरियन फ्रंटोसम. ये जो एक्सूबरेंट ग्रोथ है जो आप देख रहे हो एम्ब्रियोनिक पोल पे, this exuberant growth of this tertiary villi और intervillous spaces increase हो जाते हैं, इस एरिया को बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंटोसम.
So this is the one source, this is the major source for the development of placenta. और जो बेबी के एब एम्ब्रियोनिक पोल्स है, दैट इज जहां से बेबी कनेक्टेड नहीं है उस डेसिडुआ की, देयर इज अ ऑब्लिटरेशन, देयर इज अ मतलब ग्रोथ नहीं होती है, वहां के सेल्स डिजनरेट कर जाते हैं और वो जो लेयर है दैट गेट्स ऑब्लिटरेट, स्पेस ऑब्लिटरेट बिटवीन द डेसिडुआ पैरेटाइलिस एंड द कैप्सुलैरिस, और वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और जो रेमिनेंट बन जाता है दैट इज द कोरियन लेवाई, ठीक है। नाउ सी these two chorion frondosum and decidua brisalis form the discrete placenta. This is I have told you. It begins at 6 weeks and is completed by 12 weeks. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 12 हफ्ते का जो आपको अभी पढ़ाया गया होगा, व्हाट इज पूरा जेस्टेशन एज क्या होती है, पूरा 40 वीक्स के ड्यूरेशन में जो 6 वीक्स से शुरू होता है प्लेसेंटा डेवलपमेंट एंड बाय द 12th वीक मार्क्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये पता है ना सबको, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अप टू 12 वीक्स, तो अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज कंप्लीट, राइट? Until the end of 16th week, the placenta grow both in thickness and circumference. तो बाद में जब प्लेसेंटा बन जाता है 12 वीक से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है, दैट इज अप टू 16 वीक देयर इज अ फुल ग्रोथ, ठीक है। Now we have now learned about the development. Now the second learning objective is the anatomy of the placenta. So you must not have seen right now the delivery, but yes, when after the delivery what happens, there is a cord-like structure which is attached to the maternal uterus through with the help of this placenta. Now you can see this is the placenta. See the diagram of placenta. उसके ये this is the fetal surface of placenta. जो shiny सा आपको covering नजर आ रही है, that is the chorion, right? Amnion and chorion. तो ये this is the, are you able to see the placenta diagram? Yes, ma'am. हाँ, तो ये कौन सा सरफेस है प्लेसेंटा का, जहां से कॉर्ड अटैच होती है, दैट इज द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। तो अब हम, जैसे आपने एनाटमी में सारा ग्रॉस पढ़ते हो, फिर माइक्रोस्कोपिक पढ़ते हो, तो we will be discussing the gross anatomy. Now you can see what is the shape. This is the circular in shape, circular disc, तभी हम कहते हैं this is a discoid. The diameter is approximately up to 15 to 20 centimeter and the thickness is up to 2.5 to 3 centimeter in the center, ठीक है। क्या होता है, सेंटर में ज्यादा थिक होता है, then it thins off towards the edges, right? It feels spongy, स्पॉन्ज की तरह फीलिंग होती है इसकी, ठीक है, हाथ लगाने पे। और 500 ग्राम के करीब इसका वेट होता है। और इसका what is the proportion to the baby weight and the hair? Placenta is 1:6 at term, that is 1, if the baby weight is मतलब जो भी है उसका 1/6 weight is that of placenta and it occupies the 30% of the uterine wall, ठीक है। अभी आपने देखा था ना, कुछ एक पोर्शन से ये अटैच होता है, दैट इज कितना परसेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 30%। नाउ यू कैन सी ये जिस पोर्शन से अटैच है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30%, ठीक है। नाउ it present two surfaces. मैंने आपको एक surface दिखा दिया, that is the fetal surface जहां से cord attach होता है, ना। इसका एक maternal surface होता है, एक peripheral margin, ठीक है। तो क्या parts होते हैं इसका, एक fetal surface, एक maternal surface और एक peripheral margin होती है, ठीक है। It is rough and sponge. जो अब now I will be discussing about the maternal surface. हमने अब fetal surface देखा है, लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे अलग अलग। तो maternal surface कैसा होता है, रफ होता है, spongy होता है। Now I will show you the maternal surface. Now see in this diagram, the number 1 box is showing placenta, जिसमें cord attach है, that is the fetal surface. और जो second box है, that is showing the maternal surface. Maternal surface you can see this very rough, you can see, and spaces आपको नजर आ रही है ना, कुछ spaces इससे cartilagens बने हुए हैं, ठीक है। तो you have seen the maternal surface and the fetal surface of the placenta. Now going back to the last slide, it is dull in color, a thin grayish somewhat shaggy layer which is the remnant of decidua brisalis and come away with the placenta may be visible.
ठीक है। 15 to 20 convex polygonal areas known as lobes or cotyledons which are limited by fissures। तो आपको fissures मैंने दिखाया है, तो वो एक अलग अलग कैसे ना अलग अलग वो areas बने हुए हैं, cotyledons बने हुए हैं और separated by fissures। Each fissure is occupied by the decidua septum. Numerous small gray spots can be visible, amount to less than 1/5 of the total placenta। जो ये है means जो maternal जो part है that is about 1/5 of the total placenta। तो जो major placenta contribution है is from the fetus side, ठीक है, और only 1/5 is contributed from the mother side, ठीक है। Is my slide visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. Only the decidua basalis and the Yes. okay. Only the decidua basalis and the blood in the intervillous spaces are of maternal origin। तो ये आपने क्या देखा, मैंने बताया था ना डेसिडुआ बेसालिस से ओरिजिन होता है, और जो वहां पे ब्लड होता है इंटरविलस स्पेसेस का वो मैटरनल ओरिजिन का होता है। नाउ गोइंग बैक टू द डायग्राम अगेन, नाउ सी दिस। तो maternal part क्या होता है, डेसिडुआ बेसालिस एंड द ब्लड इन द इंटरवेलस स्पेस इज द मैटरनल पार्ट। जो देख रहे हो आप, डेसिडुआ बेसालिस है, इस डायग्राम में देख लो, जो डेसिडुआ बेसालिस है आपका, जो डेसिडुआ है एंड द ब्लड इन द इंटरवेलस स्पेसेस, ठीक है। जो आउटर से इनर मोस्ट जाओगे जहां पे डेसिडुआ लेबल है वो डेसिडुआ, और जो ब्लड है इंटरवेलस स्पेसेस में वो मैटरनल पार्ट है, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एनी पॉइंट विच इज नॉट क्लियर टू एनीवन? तो ओके, नाउ मार्जिन्स कैसे हैं? पेरिफेरल मार्जिन्स ऑफ द प्लेसेंटा इज लिमिटेड बाय द फ्यूज्ड basal and chorionic plate and is continuous with the chorion levi and the amnion, ठीक है। अब ये बताते हैं, ऊपर क्या होती है, बच्चे की तरफ होती है कोरियोनिक प्लेट, नीचे मदर की तरफ क्या होती है, बेसल प्लेट। जब ये साइड्स में जाती है तो ये दोनों फ्यूज हो जाती है। नाउ ये आई विल शो यू इन द डायग्राम। नाउ सी, ठीक है, पेरिफेरी से आप जब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाओ, एक होती है कोरियोनिक प्लेट और एक होती है बेसल प्लेट। कोरियोनिक प्लेट यू कैन सी एट द फीटल साइड, डायग्राम में देखिए, वो जो पेरिफेरी की तरफ जाओ जहाँ पे एमनियन कोरियोन लिखा हुआ है, उस पेरिफेरी की तरफ जाओ और पीछे डेसिडुआ आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, ये मार्जिन बना देती है। मार्जिन कौन बनाता है? फ्यूजन ऑफ कोरियोनिक प्लेट एंड द बेसल प्लेट। ये क्लियर है कि नहीं सबको? मार्जिन कौन बनाता है ना, कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट मिल के मार्जिन बनाते हैं फ्यूजन के साथ, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अटैचमेंट्स क्या होते हैं? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस एनक्रोचिंग इनटू द फंडस एडजेसेंट टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मतलब ये बेसिकली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में होती है और part of the body of the uterus, ठीक है। Placenta separates after the birth through the decidua। So I have told you there are 3 parts of decidua, मतलब not that capsularis which surround the baby and all, but basic जो decidua के 3 parts होते हैं, that is the outer one is the compact, that is superficial compact, and intermediate is the spongy layer and the thin is the basal layer। तो जो 3 parts होते हैं उसका, उसमें जो स्पॉन्जियोजियम है वहां से प्लेसेंटल सेपरेशन अकर्स। ये तो तुम्हारे एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है कि प्लेसेंटा किस लेयर से सेपरेट होता है, कौन सी डेसिडुआ की लेयर से, दैट इज द डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो ये एक डेसिडुआ वर्ड है जिसकी आई एम टेलिंग यू अगेन, ठीक है। आप पहले नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस को सोचो, उसके अंदर एंडोमेट्रियम है। तो मैंने क्या बताया था कि इस एंडोमेट्रियम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल और सिक्रीटरी एक्टिविटीज देयर is an increased structural and secretory activity of the endometrium which is brought because of the progesterone hormone, ठीक है, after the implantation। तो what happens after the implantation? Under the effect of progesterone there is an increased structural and secretory activity of endometrium
ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं दिस इज नोन एज डेसिडुअल रिएक्शन, और ये जो फॉर्म होता है दैट इज द डेसिडुआ. तो डेसिडुआ इज द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस. नाउ द पार्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम का अंदर से शुरू करेंगे, मतलब यूट्रस के अंदर से शुरू करेंगे, तो innermost is the superficial one is the compact layer, and then is the intermediate spongy layer, and last one is the thin basal layer. तो basal layer तो myometrium से connected होती है, right? तो एंडोमेट्रियम की 3 लेयर क्या हो बताई मैंने, कॉम्पैक्टम, स्पॉन्जियोसम एंड बेसल लेयर. तो जो स्पॉन्जी है ना, डेसिडुआ स्पॉन्जी, यहाँ जहाँ पे बिल्कुल क्या होता है स्पॉन्जी, इसमें बहुत सारे ना डायलेटेड यूट्राइन ग्लैंड्स और डेसिडुअल सेल्स और ब्लड वेसल्स होते हैं. तो इसी के थ्रू जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवर होता है, तो इस लेयर के थ्रू सेपरेशन होता है. अब किसी को ना क्लियर हो दोबारा बताऊं. Is clear to everyone? Because time is less. बेसल वाला मायोमेट्रियम के साथ है ना? हाँ, बेसल जो होता है वो मायोमेट्रियम से होता है. अंदर से चलोगे तो जो एंडोमेट्रियम का सुपरफिशियल पार्ट होता है दैट इज द कॉम्पैक्टम, देन स्पॉन्जियोसम एंड देन द बेसल. ठीक है, थिन होता है बेसल. तो सेपरेशन कहाँ से होता है, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम से. नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा. क्योंकि अभी बहुत सारा रहता है आपका, इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी करो. बस बेसिक ही बताऊंगी बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू बी टोल्ड अबाउट प्लेसेंटा. ठीक है, द प्लेसेंटा इज लिमिटेड इंटरनली by amniotic membrane and chorionic plate, externally by the, and in between these two line the intervillar space containing the stem villi with their branches and space filled with maternal blood. ये I think now it will be clear to all of you. ये जो sentence मैंने पढ़ा है ना. Is there any need? अभी amniotic membrane जो है ना, अभी आपके पास टर्म नहीं आई, तो amniotic membrane के लिए मैंने लाइन लिखी है. It consists of single layer of cubical epithelium loosely attached to the adjacent chorionic plate and it takes no part in the formation of placenta. ठीक है, तो ये बाउंड्रीज बताइए. प्लेसेंटा इज लिमिटेड इट इंटरनली बाय द amniotic membrane and chorionic plate. ये आपको डायग्राम दोबारा देखो. ठीक है, अब यहाँ पे ना आप सबसे ऊपर एक्सट्रीम राइट में देखिए एमनियन लिखा है, कहीं पर लिखा है ना बच्चों, है ना? Yes. तो प्लेसेंटा इज लिमिटेड इंटरनली बाय दिस एमनियोटिक मेम्ब्रेन. ठीक है, वो सेंटेंस समझ में आ गए. इट इज एक्चुअली ये पार्ट नहीं है बट इट इज लिमिटेड. amnion is not the part of placenta but it limits the placenta internally. उसके बाद chorionic plate है. Now you can see in the diagram chorionic plate के नीचे आपको intervillous spaces नजर आएंगे और उसके अंदर खूब सारे tertiary stem villi नजर आएंगे जिसमें blood vessels तैर रहे होंगे और उसके आप पीछे की तरफ होगा डेसिडुआ. तो ये सेंटेंस अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, तो placenta is limited internally by amniotic membrane and chorionic plate, externally by the basal plate, and in between these two lie the intervillous spaces containing the stem villi with their branches and the spaces being filled with the maternal blood. Very important. इसने सब कुछ explain कर दिया आपके placenta के structure को. ठीक है, okay, next slide. So अब थोड़ा बहुत इसके बारे में हम थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. व्हाट इज एक्चुअली, कैसे कैसे कौन कौन सी लेयर्स होती है कोरियोनिक प्लेट की. फ्रॉम आउटवर्ड इट कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव सॉरी ये डिस्टर्बेंस, सॉरी प्लीज क्लोज, इसको बंद करो जो भी इसने भी माइक ऑन कर रखा है. From outwards, it consists of the primitive mesenchymal tissue containing the branches of umbilical vessels and a layer of cytosophoblast and seed tissue trypoblast. And the basal plate consists from outside inwards. अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या आउटवर्ड क्या इनवर्ड है ना आप लोगों को. हम पहले बेसल प्लेट से चलते हैं. ठीक है, बेसल अब आउटसाइड टू इनवर्ड्स, मतलब हमने जो डायग्राम देखा था, ठीक है, तो उसके नीचे से चलते हैं. ठीक है, अब बेसल प्लेट को एक्सप्लेन करेंगे. इस डायग्राम को दोबारा देखो, हम चलेंगे नीचे से ऊपर. ठीक है, इस डायग्राम को दिमाग में रखो, नीचे से ऊपर चलेंगे इस डायग्राम में. ठीक है, बेसल प्लेट को डिस्कस करने के लिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड यानी उस वाले डायग्राम के हिसाब से नीचे से ऊपर. द पार्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस. नाउ सी दिस डायग्राम. तो डेसिडुआ लेबल देखो, आउटर साइड में क्या है, डेसिडुआ. डेसिडुआ का स्पॉन्जियोसम एंड कॉम्पैक्टम लेयर है. ठीक है, उसके बाद हम और अंदर चलेंगे तो देयर इज अ नीटा पुश्ड लेयर ऑफ fibrinoid degeneration of the outer syncytial tophoblast at the junction of cytotrophoblast shell and decidua.
बेसिकली एक ये नई टर्म आ गई आपके लिए, नीटा बुश लेयर। नीटा बुश लेयर एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट है, वो आप बाद में पढ़ोगे। कुछ कंडीशंस होती है मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा, जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा और परक्रीटा वगैरह होते हैं, जिसमें सेपरेट नहीं होता है प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी, और वो चिपका होता है, जिसकी वजह से कई बार हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस भी निकालना पड़ सकता है डिलीवरी के बाद। तो ये जो लेयर होती है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। इफ इट इज एब्सेंट देन इट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड morbidly adherent placenta. So now what is that? It is actually a layer of fibrinoid generation of the outer syncytial trophoblast at the junction of the cytotrophoblastic shell and the decidua. ठीक है, तो ये जो विलाई नजर आ रही है इनकी syncytial trophoblast और ये है इनके साथ ये इसकी लेयर बनती है, तो ये होती है नीचा बुश लेयर। इनके बीच में जो लेयर बनी रहती है दैट इज द नीचा बुश लेयर। तो ये नहीं होती तो फिर उसकी वजह से वो कंडीशन आती है। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, या बोलो मैम ये पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर लिखा है, लेकिन ये मैम ये तो अभी आपने बताया ना एंडोमेट्रियम का पार्ट होता है, फिर एक बेसिलिस लेयर आती है, तो मैम ये इसने क्यों लिखा है ये पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस? लिसन, ध्यान से सुनो। What is decidua basalis? Decidua basalis is the portion of decidua. Decidua क्या होता है? Endometrium of the pregnant uterus. तो वो वाली endometrium जो बच्चे के जो embryonic pole से connected होती है, that is the decidua basalis. ठीक है, तो हर डेसिडुआ का कॉम्पैक्ट होगा, स्पॉन्जी और वो थिन बेसल लेयर होगा हर डेसिडुआ का, चाहे वो डेसिडुआ पेराइटालिस हो, चाहे कैप्सुलरिस हो या डेसिडुआ बेसालिस हो। ये क्लियर है आपको? दोबारा बताओ, दोबारा बताती हूँ। चलो देखो बच्चों, आप डेसिडुआ को देखो डायग्राम में, ठीक है। वो जो डेसिडुआ है, ये वाला डेसिडुआ तो एम्ब्रियोनिक पोल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक पोल के साथ डेसिडुआ कनेक्टेड है दैट इज डेसिडुआ बेसालिस, और जो कि बच्चे जो बाकी के यूट्रस में कनेक्टेड है दैट इज द डेसिडुआ पेराइटालिस, ठीक है। और जो बच्चे को सराउंड कर रहा है, आप इस डायग्राम में देखो, दैट इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। तो ये जो डेसिडुआ है जो अलग अलग पोर्शंस में है, अलग अलग पोर्शन मतलब कि अगर बच्चे को सराउंड करेगा तो कैप्सुलरिस होगा, और अगर बाकी के यूट्रस में होगा पेराइटालिस होगा, और अगर एम्ब्रियोनिक पोल में होगा तो क्या होगा, बेसालिस। तो जब ये, लेकिन डेसिडुआ है तो एक ही चीज ना, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जी लेयर, जैसे कि कॉम्पैक्ट लेयर नंबर 1, स्पॉन्जी लेयर एंड थिन बेसल लेयर, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई है ना? तो वो सभी जगह होगी, लेकिन जहां पे ये एम्ब्रियोनिक पोल्स वाला डेसिडुआ है दैट इज डेसिडुआ बेसालिस, वहां पे विलाई की ज्यादा ग्रोथ होगी स्पॉन्जी लेयर कॉम्पैक्ट लेयर में, उसे कोरियन फ्रंटोसम बोलेंगे। तो हम कहाँ पे थे, एक मिनट आती हूँ स्लाइड में, आई एम कमिंग बैक टू द स्लाइड। हाँ, तो हम बेसल प्लेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसल प्लेट क्या होती है, हम मतलब उस बॉक्स के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से नीचे से ऊपर चलेंगे, मतलब कि आउटसाइड, मतलब आउटसाइड टू इनवर्ट, समझ रहे हो ना? आउटसाइड मतलब मदर से बच्चे की तरफ, ठीक है। आउटसाइड टू इनवर्ट चल रहे हैं, तो पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट तो स्पॉन्जी लेयर ही तो होगा बेसालिस में, तो बेसल लेयर तो कंट्रीब्यूट नहीं करता ना। जो 3 लेयर्स होती है ना डेसिडुआ की, कॉम्पैक्टम, स्पॉन्जिसम, बेसल, वो लेयर नहीं करती, बल्कि द कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर करती है डेसिडुआ की, ठीक है। और कहाँ से सेपरेशन होता है, स्पॉन्जी लेयर से सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस डेसिडुआ के बाद होता है नीटाबुश लेयर, जो कि सिंसिशियो और साइटोट्रोफोप्लास्टिक जो शेल है उसके बीच में और उसके बीच में होगा, डेसिडुआ के बीच में। देन साइटोट्रोफोप्लास्टिक एंड द सेल्स एंड द सिंसिशियो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है। तो ये बेसल प्लेट में ये कंपोनेंट्स होते हैं। कोरियोनिक प्लेट में क्या होगा, जो अम्लाइकल वेसल्स होंगी और लेयर ऑफ साइटोट्रोफोप्लास्ट एंड सिंसिशियो ट्रोफोप्लास्ट, ये कोरियोनिक प्लेट जहां पे अम्लाइकल वेसल्स हैं, ठीक है, और साइटोट्रोफोप्लास्ट एंड सिंसिशियो ट्रोफोप्लास्ट, ठीक है। एक बार ना आप लोग अपने आप से बुक में भी पढ़ना, क्योंकि मैं मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं इसके स्लाइड्स के थ्रू समझा रही हूँ। अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता तो थोड़ा और अच्छे से समझाती, ठीक है। So the basal plate is perforated by the spiral branches of the uterine vessel through which the maternal blood flow into the intervillous veins
but fail to reach the chorionic plate. ठीक है, तो बेसल प्लेट्स ये यहाँ पे नाउ सी बेसल प्लेट जो है जहाँ डेसिडुआ के पास है वहां पे देखो मदर की ब्लड जो होता है वो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं, स्पाइरल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेस आपने पढ़ी होंगी कैसे रेडियल आर्टरीज होती है, स्पाइरल आर्टरीज होती है, तो वहां से स्पाइरल आर्टरी से ब्लड इंटरवेलस स्पेस में जाता है, ठीक है, लेकिन वो कोरियोनिक प्लेट में नहीं जाता, बस उस इंटरवेलस स्पेस में रहता है और उसके बाद एक्सचेंज होता है विलाई से। The septum consists of decidua elements covered by trophoblastic cells. तो इनके बीच में मैंने क्या बताया था कि ये जो इंटरवेलस स्पेस में चले गए ना उसके बीच में क्या होता है, now see, ये वाला जो सेप्टम है इनके बीच में, तो ये बेसिकली क्या होता है, डेसिडुआ का पार्ट होता है, ठीक है। ये जो सेप्टम विलाई जो इंटरवेलस स्पेसेस को डिवाइड करने वाली जो पिंक लाइट ऑरेंजिश लाइन देख रहे हो ना, तो वो क्या है, एक्चुअली डेसिडुआ का ही पार्ट है, यही सेकंड लाइन में। द सेप्टम कंसिस्ट ऑफ डेसिडुअल एलिमेंट्स कवर्ड बाय द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। द एरिया बिटवीन द सेप्टा आर नोन एज कॉटिलेडन्स, दैट इज लोब्स व्हिच आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इंटरनल सरफेस। तो ये डायग्राम अगेन देखो, इन दो सेप्टम नजर आ रहे हैं सबको बीच में, ये जो डेसिडुआ से निकलते हुए लेकुनर स्पेसेस में जा रहे हैं वो सेप्टाज हैं, देखो जरा ध्यान से। इज एवरीबॉडी क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इन दोनों सेप्टम के बीच में जो एरिया होगा दैट इज द लोब्स, जो लोब्स होंगे वो एरिया, ठीक है। बहुत वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये लोब्स होते हैं, ये अराउंड 15 to 20 नंबर होते हैं। ये सरफेस आई हैव डिस्कस्ड कि दो सरफेस नॉर्मल प्लेसेंटा का, एक फर्स्ट बॉक्स इज शोइंग द फीटल सरफेस एंड द सेकंड box is showing the maternal surface. Maternal surface you can see the number of fissures are there, different separation, जो fissures हैं वो different cartilagens को separate कर रहे हैं। Now in the next diagram, ये diagram तो मैंने आपको बहुत अच्छे से explain कर दिया है, second diagram भी मैंने आपको बहुत अच्छे से explain कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा मैं ना जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी इसका, क्योंकि इसको ना आपका एक प्लेसेंटल सर्कुलेशन होगा ना, वो थोड़ा सा उसमें भी उससे समझ में आएगा। तो नाउ जस्ट रीडिंग इट आउट, अ मैच्योर प्लेसेंटा हैज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड। अभी मैंने वेट क्या बताया था उसका, अराउंड 500 ml 500 ग्राम का वेट हो सकता है, उसमें ब्लड का वॉल्यूम 500 ml के राउंड होता है, 300 being occupied by the villi system and 150 lying in the intervillous spaces. Intervillous blood flow इसकी रेट पे चलता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अभी मैं बताऊं आपको। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लेते हैं दोबारा से, ये आप देख लीजिए, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये इसमें ना उल्टा बना हुआ है, ये मतलब बच्चे का तरफ नीचे है, फर्स्ट डायग्राम में देखिए बच्चे का साइड नीचे है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। ये सारे बिल्कुल वही डायग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये इसके क्रॉस सेक्शन है जो मैं आपको बताती जा रही थी कि इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है। प्राइमरी विलाई क्या होता है, साइटोट्रोफोप्लास्ट एंड ट्रोफोप्लास्ट। सेकेंडरी विलाई इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंटर द प्राइमरी विलाई। टर्शियरी विलाई इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, उसके साथ ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे। नाउ सी द क्रॉस सेक्शंस, जो सेकंड बॉक्स देखिए उसमें 3 गोले बने हुए हैं, सी आर यू एबल टू सी सेकंड बॉक्स को? सेकंड बॉक्स में 3 गोले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाइज बने, ठीक है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। Now I will be telling in short about the placenta, functions of placenta. मोटी सी बात है, it helps, मतलब इसमें भी every point needs description. Just to remember कि there occurs transfer of nutrients and the waste products. तो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, न्यूट्रिटरी फंक्शन होता है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे फार्मा में, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पढ़ा है ना, ये वर्ड आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस मैम, यस। हाँ, तो व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ दीज सब्सटेंसेस? जो भी सब्सटेंस ट्रांसफर होता है, या वो रेस्पिरेटरी हो या एक्सक्रीटरी हो या न्यूट्रिटिव हो, तो सिंपल डिफ्यूजन इज अ मैकेनिज्म, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें हमें किसी ट्रांसपोर्टर मीडिएट की जरूरत होती है, या एक्टिव ट्रांसफर जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है, या एंडोसाइटोसिस जैसे कि इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो कि उसको अंदर ले लेता है, या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, या लीकेज, सिंपल
लीकेज हो जाती है अगर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की ब्रेक हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू मैकेनिज्म। क्या होता है? एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर, एक्सोसाइटोसिस एंड लीकेज। तो व्हाट आर द एक्चुअली फैक्टर्स which help in the transfer of substances from the placenta? फैक्टर्स क्या होते हैं? मतलब कि कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मदर की प्रॉपर्टी होती है और कुछ प्लेसेंटा की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर हम सब्सटेंस की बात करें कि कौन सा मॉलिक्यूल हमें ट्रांसफर करना है, कैसा मॉलिक्यूल होना है, अगर वो छोटा मॉलिक्यूल होगा, मतलब ये हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन इट विल बी पास्ड इजीली through the placenta to the baby, and if it is lipid soluble then also it will be, तो placenta is actually lipid soluble। ठीक है, लिपिड solubility जिसकी ज्यादा होगी जिस सब्सटेंस की, वो जल्दी से पास होगा। जो नॉन आयोनाइज चीजें है ना, दैट विल आल्सो पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड द पीएच, लोअर द पीएच फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ मेनी ड्रग्स, राइट। प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू कर सकता है। ठीक है, राइट। मदर का क्या है? अगर मदर में किसी पर्टिकुलर ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन इट विल बी गो मोर टू द प्लेसेंटा, टू द फीटल साइड। और अगर यूट्राइन फ्लो ज्यादा है तो भी मदर से फीटस की तरफ वो जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, और फैक्टर्स क्या होते सकते हैं मदर के, कि अगर वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो, मतलब जहाँ पे उनका फ्लो मतलब सर्कुलेशन एस्टेब्लिश है, तो फिर मदर से फीटस की तरफ। ठीक है, तो क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है न्यूट्रिशन में? ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसफर डिफ्यूजन से। लिपिड्स ट्रांसफर हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, हार्मोन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। और इस प्लेसेंटा की कुछ एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, आप फर्दर पढ़ोगे कुछ जो कैसे क्या क्या रिलीज करता है और क्या होता है। ठीक है, कुछ बैरियर फंक्शंस होते हैं। बेसिकली बैरियर फंक्शन अब एक्चुअली नाम का रह गया, पहले बैरियर बोलते थे, लेकिन अब हमने बैरियर के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर किया है, तो उससे ये पता चला है कि ये बैरियर बस नाम का बैरियर है, सब कुछ पास होने देता है। ठीक है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस है, मतलब कि एंटीबॉडीज भी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज भी बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये डिटेल्स आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी, जस्ट इन अ शॉर्ट कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, राइट। सो थैंक्स टू एवरीवन। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, नेक्स्ट इज द एनाटॉमी ऑफ द प्लेसेंटा, एंड थर्ड इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, राइट। Today's job is yours is to read the chapter in your datta, that is the placenta, right? Chapter number 3 है शायद आपका, मुझे नहीं पता न्यू बुक्स में कौन सा चैप्टर है। तो उसमें बेसिकली आप एक बार वो पढ़ लेना, what is how it develops, what is the anatomy and what are the functions of the placenta। बहुत बहुत आराम से पढ़ा जाएगा, मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी को कोई डाउट है then can ask me। Has anybody is मैम एक having? स्लाइड में लिखा हुआ था कि प्लासेंटा डेवलप्स फ्रॉम 6th to 12th वीक। मैम 6th क्यों लिखा है?